So, hello everybody. Today I am before you with the new chapter that is We Are Not Afraid to Die. It's the second story of the book Hornbill, right? Class 11th, and the writer Gordon Cook and Alan East. First of all, you must know that this is a story of courageous people, bold people. This is a story of a teamwork. This is rather adventure. Okay, so this story gives us a huge inspirations, lot of motivation to reach to the destinations. This story tells us that how to reach to the destinations, crossing all the difficulties, all the distress, all the life-taking risk. It teaches us, it inspires us not to be afraid, not to move away. It teaches us the importance of teamwork. So we will learn this story step by step, and we will have a greater impact. We will go away with a positive vibe. We will come to an end with some spirit, a very energized spirit we will have. I must tell that this is a story of unwavering courage, sacrifice, patience, and teamwork. What is the name of the story? We Are Not Afraid to Die. Here, Gordon Cook has decided to duplicate the world record made by James Cook. Sailor refers to that, one who makes journey on sea, water level. So, a particular point is decided that, and this path, this length is decided, and in this length, you will see lot of sufferings are there, lot of distress are there, lot of difficulties are there. Sometimes it risk of life also involved. So we will see. Acha, who are the characters here? Gordon Cook, the main characters, Mary, his wife, Susan, his daughter, and Jonathan, his son, and Harb and Larry. They are the crewmen, helper, assistant to sail the boat. Okay. Now, the name of the boat is Wave Walker. Is a wooden hulled beauty. It was professionally made. Means ये boat को only for this purpose बनाया गया था, construct किया गया था. कैसे? I think for few years they have tested Wave Walker to face the difficulties, to face the storm, to face the gales, to face the winds. कि इनको जैसे कि आपने टाइटैनिक शिप की बात सुने होंगे ना, तो टाइटैनिक शिप को इतना स्ट्रांग बनाया गया था, ओनर को एक कॉन्फिडेंस था कि दुनिया की कोई ताकत टाइटैनिक को क्या नहीं कर पाएगा, डैमेज नहीं कर पाएगा. सो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट इस वेव वॉकर को बिल्कुल ही उसी टफनेस के साथ बनाया गया है. दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनली मेड, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनली बिल्ड. मीन्स वेव वॉकर को हार्श वेदर फेस करने के लिए, मैसिव वेव्स फेस करने के लिए ही बनाया गया. चाहे कितना भी नेचर कैलामिटीज इसके ऊपर गिरे, इस वेव वॉकर को कोई प्रॉब्लम, ट्रबल नहीं होने का. राइट? अच्छा, इट वॉज हाउ मेनी मीटर्स? 23 meters length and 30 ton इसका वेट हुआ करते थे. राइट? इट वॉज ए ब्यूटीफुल शिप. ओके, नाउ आपने देखा होगा कि दैट मीन्स गॉर्डन कुक और एक फैमिली ट्रिप है, फैमिली एडवेंचर्स. कोई भी बंदा आज के डेट में देखो आप, कोई भी बंदा कोई एडवेंचरस जर्नी या क्लाइंबिंग टू द माउंटेन अगर किया होगा तो फिर एक लोग, एक से बहुत ज्यादा होंगे तो फिर दो लोग, वो भी टीम वर्क या फिर चलो टीम वर्क. लेकिन यहाँ पे एक चीज, वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड, यहाँ पे गॉर्डन कुक, मैरी, सुजैन, ये सब फैमिली हैं. इनमें दो लोग थोड़ा सा ठीक ठाक हैं और बाकी सब मेंबर्स हैं. दे विल गिव नो कंट्रीब्यूशन फेसिंग द ट्रबल्स. रादर ये क्या है? मोस्ट अफेक्शनेट एंड लविंग मेंबर्स हैं. अच्छा, इसके पीछे रीजन ये भी था कि दैट मींस ये जो लॉन्ग जर्नी इन्होंने चुना था ना, इट वाज फॉर ऑन व्हिच एरिया दिस adventure started. Southern Indian Ocean. How many oceans are there? 5 oceans. Southern Indian Ocean. It is said that the most stormy, most windiest and most disastrous ones, उसी रूट को इन्होंने चुना है. कौन चुना है? गॉर्डन कुक ने चुना है. अच्छा, आपने एक स्टोरी एक पोएम 9th क्लास में पढ़े ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या है? रोड नॉट टेकन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दो लाइन, दैट मींस वन लाइन वाज क्लियर एंड अदर वन वाज ग्राशी. ग्राशी वंस. तो क्लीन पाथ पे सभी लोग चलता है, बट यहाँ पे ग्रासी पाथ पे कोई नहीं चलता है. आई विल गो विद दिस ग्रासी पाथ, आई विल गो विद दिस डिफिकल्ट पाथ, आई विल फेस द ट्रबल्स. तो वैसा ही गार्ड्स गॉर्डन कुक के पास है. गॉर्डन कुक ने जो स्टार्ट किया द मोस्ट रफेस्ट वेदर, मोस्ट रफेस्ट
सी रूट, साउदर्न ओशन रूट, उस पे हम चलेंगे और विथ फैमिली को लेके चलेंगे। ये जो करेज रखता है, हाँ, ये जो बोल्डनेस रखता है बेटा, ये रियली अप्रिशिएबल पर्सन। चलो देखते हैं, इनके पास इतना स्टेमिना है, इतना फेथ है, ट्रस्ट है, इतना अलर्ट है कि वो फैमिली को लेके एडवेंचर फेस करने के लिए निकल पड़ा। ये रियली अप्रिशिएबल। आई सी दैट ही इज रियली ए मैचलेस पर्सन। कहां से इनका जर्नी स्टार्ट हुआ है, कब जर्नी स्टार्ट हुआ है? 1976 जुलाई में, हाँ, इन्होंने इंग्लैंड के प्लेमाउथ एक जगह है, वहां से जर्नी स्टार्ट किए हैं। उनको पहुंचना है साउथ अफ्रीका, आइल एम्स्टर्डम एक आइलैंड है, वो ब्यूटीफुल आइलैंड है, राइट। अच्छा, ब्यूटीफुल आइलैंड आइल एम्स्टर्डम, साउथ अफ्रीका पहुंचना है। कहां से जर्नी स्टार्ट हुआ है? दैट मीन्स इंग्लैंड की प्लेमाउथ से, राइट। इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाना है, प्लेमाउथ से जर्नी स्टार्ट हुआ है, पहुंचना है आइलैंड ऑफ एम्स्टर्डम। दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी इन 19 जुलाई, राइट। 1976 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 months they have crossed, right? And now, अब दिसंबर की लास्ट में आके जो है इन लोगों को इन्होंने सोचा है कि दैट मीन्स देयर विल हैव क्रिसमस सेलिब्रेशंस, एंड इन दिस क्रिसमस सेलिब्रेशन दे विल हैव ए गुड वेदर कंडीशंस। सभी लोग फेस्टिवल मनाते हैं, सोचते हैं कि देयर विल कम सम गुड वेदर कंडीशंस। बट क्या हुआ? वेदर कंडीशन इन लोगों का और वायोलेंट हो गया। वायोलेंट मीन्स एट्रोशियस वेदर बन गए, हार्मफुल वेदर बन गए, गेल्स, स्टॉर्म, एंड स्टॉर्म की वजह से मैसिव, दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड स्टॉर्म की वजह से दैट मीन्स क्या हो गया? वेव turned high. Wave of water became higher one. They were thinking how to go on, but they were running their life with calculations, full calculations. They were running their life with full calculations. सोच रहे थे वो. Pin drop silence was there before disaster came. Writer is telling that impending disaster came. हाँ, और पूरा एकदम सन्नाटा हो गया. Silence everywhere. उन्होंने सोचा है कि there was a heavy cloud, 15 meters height, 30 meters height वाला एक heavy cloud है, चारों तरफ एकदम ग्रे क्लाउड हो गया है। बट नहीं, कुछ देर बाद जो है ऑल ऑफ ए सडन जो है जब धड़ाम से गिरा उसके ऊपर ना, तो फिर क्या हो गया? उनका होश खुला, और फिर जब होश खुला तो फिर क्या हो गया? ही इज थ्रोन अवे। यानी कि 30 मीटर्स हाइटेड जो है क्या हो गया? जो ह्यूज वेव्स शिप के ऊपर आके गिर पड़ा, और जब शिप के ऊपर वायलेंट स्टॉर्म्स, मैसिव वेट हिट द वेव वॉकर, क्या हो गया? नैरेटर वाज थ्रोन अवे फ्रॉम द डेक, स्टीयरिंग, हाथ से स्टीयरिंग निकल गया फिर, ओके। एंड देन ही गॉट हिज रिब्स क्रैक, रिब्स जो है, एंड टीथ वर ब्रोकन, ओके। एंड क्या हुआ? माउथ फिल्ड विथ ब्लड। सपोज कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो फिर क्या होता है? सबसे पहले उनकी बॉडी यू जो है गिरता है, और फिर जो है माउथ फिल्ड विथ ब्लड। एकिंग मीन्स पेन। अगर किसी का दांत टूट जाए और एक दैट मीन्स रिब्स, हड्डी जो है इतना क्रैक हो जाए, तो आप सोचो, इमेजिन करो उनको कितना तकलीफ होने वाला है। और ही वॉज थ्रोन अवे, और डेक्स में दैट मीन्स शिप में चारों तरफ पानी हो गया, राइट। आ जाओ। जब स्टीयरिंग व्हील हाथ से निकल गए और फिर गॉर्डन कुक आउट ऑफ द शिप हो गए, तो दैट मीन्स द शिप वाज, वेव वॉकर वाज ऑलमोस्ट कैप्साइजिंग। मीन्स हॉरिजॉन्टल शिप था, अब हॉरिजॉन्टल शिप टर्न इनटू ऑलमोस्ट वर्टिकल वंस। जो इसका जो मेन स्टार्न होता है, स्टार्न मीन्स मेन आपका पोल होता है, राइट, वो क्या था? वर्टिकल शेप था, अब धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल होने जा रहा है, यानी कि वो कैप्साइजिंग हो रहा था। मींस कैप पार्ट ऑफ वेव वॉकर वाज ऑलमोस्ट गोइंग डाउन। मींस अब सब लोग वेट करने लगा है कि अब क्या हो गया, शायद हम लोग का एंड हैज कम। बट इसने कौन नहीं, देखो ये सबसे क्लाइमेक्स पॉइंट है। क्लाइमेक्स पॉइंट इन द सेंस पानी का वाटर लेवल जो है पूरा एकदम कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड कर दिया, और जब वाटर अंदर एंट्री मारा तो फिर क्या हो गया? देयर वाज ए इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटेड। यू कैन इमेजिन हियर। सुजैन को क्या हुआ? देखो, सुजैन को बम्प्ड हेड हो गया, सुजैन को ऐसे लगा और फिर हेड बम्प्ड हो गया, राइट। नाउ और इस सिचुएशन में उसने क्या किया? कौन? गॉर्डन कुक। गॉर्डन कुक ने देखा, कैप्साइजिंग शिप को देखा, तो फिर जो है अपना पूरा स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके हाफ स्वम हाफ क्रॉल्ड करते हुए वो किसके अंदर आए हैं? फिर शिप के अंदर आ गए। आप इमेजिन करो, इस सिचुएशन में कौन बंदा जीने के लिए करेज कलेक्ट करता है? कोई नहीं कर पाता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाओगे, बट देयर आर सम बॉर्न पर्सन्स, देयर आर सम स्पिरिटेड पर्सन्स, जो उनकी खून में करेज दौड़ता है, राइट।
तो ये आपका कौन था? गॉर्डन कुक ने कहा है कि नहीं, जब तक है जान तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसने जंप करते हुए, सारे दर्द को इग्नोर करते हुए, सारे दर्द को पेशेंटली इग्नोर करते हुए उन्होंने जंप्ड इनटू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीयरिंग द व्हील, मैनेज्ड इट। फिर मैरी यहां आ जाओ। अब मैरी के हाथ में जो है वो स्टीयरिंग व्हील थमा दिए। मैरी के हाथ में जब स्टीयरिंग व्हील थमा दिए तो फिर उन्होंने जो है बताया, उनको सजेस्ट इंस्ट्रक्ट किया, हेलो हार्व, लैरी, आप एक काम करो, पानी को पंप आउट कर दो जितना पॉसिबल है। जब पानी को पंप आउट करने की कोशिश किया तो देखा है कि दैट मींस इलेक्ट्रिक पंप जो है क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। अनदर हैंड पंप, फिर दोबारा किसी तरह अनदर स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप था, ठीक है, तो उससे किसी तरह दैट मींस हैंड पंप, वो हैंड पंप से किसी तरह जो है क्या हुआ, they were pumping out the water as soon as possible like a crazy juggler, like a madman। अब देखो तीनों लोग, तीनों एक्टिव मेंबर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैरी के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, क्रूमैन आर पंपिंग आउट वाटर, और ये बंदा कर क्या रहा है, कौन, गॉर्डन कुक। गॉर्डन कुक हैमर और स्क्रू लेके कैनवास कट करके, कैनवास बोले तो थिक क्लोथ्स को कट करके, जहां पे डेस्क में क्या हो गया, होल हो गया या फिर फट गया या फिर डैमेज हो गया, जहां से पानी एंट्री कर रहा है ना, पानी का एंट्री हो रहा है, उस जगह को बंद कर रहा है स्क्रू देके। मींस थोड़ा बहुत चुने वाला पानी होगा, दैट मींस लीकिंग होगा, तो वो तो मैनेज किया जाएगा, लेकिन एट ए टाइम बहुत ज्यादा पानी आना तो वो मेजर पार्ट्स, क्योंकि ये सारे वर्क जो है और किसी से होने वाला नहीं है। देखो टीम मेंबर्स और कैप्टन के बीच में डिफरेंस यही होता है। क्या डिफरेंस होता है कि कैप्टन क्या करता है, सबसे जो मेजर रिस्की या डिफिकल्टीज वाला वॉर को अपने हाथ में रखता है, और जो मेंबर्स को रादर इजियर, रादर कंफर्टेबल वर्क दे करके चलते हैं, बेटा आप ये करो, भाई तुम ये करो, और ये वाला काम हम देख ले रहे हैं फिर, ठीक है। तो जहां पे डिस्ट्रेस है, जहां पे डिफिकल्टीज है, जहां पे आपका डिवोशन है, वो काम वो करना चाहते हैं। अगर मान लो उस काम में थोड़ा सा क्या है, इंसल्ट भी है, डजंट मैटर, थोड़ा सा गंदगी साफ भी करना है, डजंट मैटर, तो ये विनर कैप्टन का काम है, तो यही काम उसने करना शुरू किया। आप इमेजिन करो, यहाँ पे गॉर्डन कुक की मुंह में से ब्लड निकल ही रहा है, और इनमें क्या है, देयर इज ए क्रैक्ड रिब्स, ये एक सपना है। क्या सपना है, एक टारगेट है। क्या टारगेट है, दैट दे विल रीच टू आइल एम्स्टर्डम। हाउ पेशेंटफुल पर्सन इन द मिडिल ऑफ डिस्ट्रेस, टेंशन, टेरर, देयर इज ए रिस्क ऑफ लाइफ, फिर भी इन्होंने क्या नहीं छोड़ा, होप नहीं छोड़ा है। और दूसरी बात है, सारे होप, सारे टारगेट आपके हाथ में आ सकते हैं अगर आपके साथ जो लोग हैं वो लोग कोऑपरेट करें। तो देखो, मैरी स्टीयर्ड, क्रूमैन पंप्ड आउट वाटर। सुजैन को बीच में क्या हुआ, सुजैन को एक बहुत बड़ा चोट लगा, हेड और उनका जो है क्या नाम है, ये वाला पार्ट जो है क्या हो गया, बम्प्ड हो गया और फूल गया। जोनाथन वाज टेलिंग दैट ही इज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे आर ऑल टुगेदर। यानी कि छोटे बच्चों का देखो एटीट्यूड, देखो छोटे बच्चों का एटीट्यूड, यहाँ पे वो लोग they did not contribute physically but they were the very strong mental supporter, they were very courageous mental supporter। कैसे, जब इन्होंने देखा है कि all the members are quite busy saving the ship, saving the life, तो they did not bother, they did not disturb about their own problem। इससे कहा गया है कि this story is full of patience। ये पेशेंस कौन रखा, पेशेंस वो दोनों बच्चे ने रखा है। पेशेंस तो ये लोग तो बड़े लेवल का पेशेंस रखा है, लेकिन छोटे बच्चों का भी जो है दैट मींस माहौल देख करके, सिचुएशन देख करके, दे आल्सो चेंज देयर मूड। ओके डन। आ जाओ। किसी तरह आफ्टर ऑलमोस्ट 40 hours passed, they were pumping out waters, or you can imagine here working like a madman, totally physically exhausted, energy level is exhausted, light नहीं है, पानी चारों तरफ भरा हुआ है। And you can see that it was a vast ocean, चारों तरफ पानी ही पानी है, और पानी के बीच में ये लोग, अरे बेटा ये सोच करके इंसान घबरा जाएगा। And they are actively working to fight against the natural calamities। Imagine एकदम सन्नाटा सा एरिया है, पानी चारों तरफ पानी पानी है, कोई नहीं नजर आ रहा है, नॉट ए सिंगल एनिमल, नॉट ए सिंगल फिश, नॉट सिंगल मछुआरा, कोई नहीं। इमेजिन, लेकिन क्या है, देयर इज ए ट्रस्ट, देयर इज ए फेथ, देयर इज ए होप, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये जो स्पिरिट लेके चल रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा इसका वाटर लेवल जो है डाउन हो गया, किसका, इनसाइड द शिप। और जनाब वो थक चुका था, कौन, गॉर्डन कुक ने गया थोड़ा सा ऊपर जाके बंक में लेट गए। तब तक किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और फिर इंफॉर्मेशन जब शाम के वक्त है, ऑलमोस्ट जो है नेक्स्ट डे शाम के वक्त है, इवनिंग टाइम है, अभी
गोल्डन लाइट वाज देयर, सूरज की लाइट रोशनी थी। और फिर एक दिखा है कि वहां पे कुछ दिख रहा है, टफ्ट्स ऑफ ग्रास अर्चिन। चलते चलते वो लोग मैग्नीफायर दैट मींस कंपास से देखे तो देखे कि उसका लोकेशन नजर आ रहा था, राइट, अबाउट। और वो जो लोकेशन है 65 किलोमीटर्स का वो एरिया है, और 65 किलोमीटर एरिया वाज कवर्ड विथ व्हाट, द वास्ट ओशंस, एंड इट वाज फुल ऑफ ग्रासेस आल्सो, लिटिल वेजिटेशंस आर देयर। जोनाथन, बेटा, पापा को टग करे, पापा पापा यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। वो कैसे? आई वॉन्ट टू गिव ए हग, बिग हग हियर। क्यों? यू आर द बेस्ट फादर, यू आर द बेस्ट पापा। जब उठे जागे तो देखे कि दैट मींस दे हैव ऑलमोस्ट रीच्ड टू दैट आइल एम्स्टर्डम ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, सो सेलिब्रेशन हुआ। कैसा सेलिब्रेशन? जो भी बचा कुचा बिस्किट, फूड आइटम्स, कॉर्न, बीफ, दिस एंड दैट, जो भी कुछ था उसी से सेलिब्रेट हुआ। तो देखो, सेलिब्रेट करने के लिए आइटम की जरूरत, फूड आइटम्स या दिस एंड दैट आइटम की जरूरत नहीं है। सेलिब्रेशन तो हर पल हर वक्त हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? द विलिंगनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए, विलिंगनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए, रेडीनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि हर वक्त हर पल हर मोमेंट को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, राइट। और फिर जब जो है देखा तो फिर देखा है कि सुजैन को बहुत जरा दैट मींस हेड बम्प हो गया। बाद में इनको कई इनको जो है सीवियर फ्रैक्चर होने की वजह से इंजरी, ऑपरेशन करना पड़ा फिर, राइट। और इधर जोनाथन किसी से डरता नहीं था, राइट। और मैरी को स्टीयरिंग व्हील पकड़ना नहीं था, राइट। शी कुड नॉट स्टीयर, बट सिचुएशन ने उनको अलर्ट बना दिया, इतना अलर्ट बना दिया कि देयर वाज नो ट्रबल, देयर वाज नो फियर। लास्ट में द स्टोरी की एंड पे आप जाओगे तो फिर गॉर्डन कुक की कुछ क्वालिटी, जेंटलमैनली क्वालिटी रियली impress me that he is the captain par excellence, he is the real captain par excellence। उनका जो मोटिवेटिंग स्पिरिट है वो हर किसी के दिल को अट्रैक्ट कर लेता है। कैसे? वो कहें कि वाओ, देखो Larry and Harv, they were tireless, but even they continued working like a madman. And he was telling that his wife means last में वो सबका thanks दिया। He thank you everybody, he greeted everybody। और एक अच्छी बात सुन लो बेटा जेंटलमैन की, कि सबको अप्रिशिएट करता है और खुद को छोड़ देता है। मीन्स आपने देखा है कि दैट मींस ये जो जर्नी, ये जो एडवेंचरस स्पिरिट ट्रिप गॉर्डन कुक ना होते तो बचाना या पहुंचना मुश्किल होता ना, नामुमकिन होता ना। लेकिन कैसे पहुंचा? उनकी वजह से। लेकिन वो खुद को ये नहीं कहा है कि आई हैव डन दिस एंड दैट। तो दीज आर द स्पिरिट, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ हुम, राइट कैप्टन। अच्छा, अगर बाय द वे आपको यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो फिर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट वर द इंपेंडिंग डिजास्टर्स? इंपेंडिंग मींस गोइंग टू हैपन। डिजास्टर होने से पहले का जो है माहौल था टोटली पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके, द वेदर कंडीशन वाज लुकिंग लाइक द ओमिनस साइलेंस, राइट। और फिर जो है दैट मींस व्हाट स्टेप्स दे हैड टेकन फॉर फेसिंग द ट्रबल्स। वो क्या क्या स्टेप उठाए थे ट्रबल को फेस करने के लिए, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। वेव आकर के डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, ओके, एंड देन इसको आप कैसे कहोगे कि दैट मींस डेंजरस स्टोरी, सॉरी एडवेंचरस स्टोरी है। एडवेंचरस स्टोरी उसी को कहा जाता है। एडवेंचरस में दैट मींस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होती है पहुंचने के लिए, तो आप डेस्टिनेशन देखे हो। और बीच में दैट मींस दे फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आर देयर। क्लाइमैक्स सीन्स दिखा दो फिर आप। लेकिन इस लॉट ऑफ ट्रबल्स को भी फेस करते हुए उन्होंने क्या कर दिखाया? सबकी जिंदगी को बचाया है। डेस्टिनेशन में ही नहीं पहुंचा बल्कि सबकी जिंदगी को बचाया और सबको तारीफ किया, अप्रिशिएट किया। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ कैप्टन्स। आई होप स्टोरी को एक बार आप बिगिनिंग टिल द एंड पढ़ लोगे तो आई नो दैट सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। फिर आप नहीं तो फिर आई विल हेल्प ना।